وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے جب زور سے پورا کمرہ ایک جھٹکے سے کھولتے تراب خان کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے گھبرائی ہوئی سی نور بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئی تو سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ تراب خان کچھ کام سے لاہور گئے ہوئے تھے اور آج ہی جب گاؤں پہنچے تو انہیں سب سے پہلے یہی خبر ملی کہ وہ دادا بن گیا، مگر پوتے کے نہ ہونے اور پوتی کے ہونے کی جب انہیں یہ خبر ملی تو جیسے غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ ان کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ ان کا میٹر سب سے زیادہ تب گھوما جب انہیں پتا چلا کہ جزلان نے بچی کی پیدائش پر پورے گاؤں میں مٹھائیوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک چاندی کا سکہ بھی بٹوایا، اور یہی بات انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی کہ ان کا بیٹا ایک لڑکی ذات کی پیدائش پر اتنی خوشیاں منا رہا ہے، جبکہ لڑکی تو ان کے خاندان میں منحوس قرار دی گئی تھی شروع سے، اور انہوں نے جزلان کو بھی ہمیشہ یہی سکھایا تھا، مگر اب اس سے کیا ہو گیا تھا جو اتنا خوش ہو رہا تھا بیٹی کی پیدائش پر۔ بابا میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا، دیکھیں آج کتنا خوشی کا دن ہے، آپ کا بیٹا باپ بن گیا، میرے گھر اللہ کی رحمت آئی ہے۔ دیکھیں جزلان اپنی خوشی میں ان کا غصے سے بھبوکا چہرہ دیکھ ہی نہیں پایا اور بچی کو ان کے سامنے کرتا دکھانے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تو راب خان غصے سے دھاڑے تو ان کی تیز آواز پر بچی چونک کر رونا شروع ہو گئی، جسے جزلان نے فوراً اپنے ساتھ لگایا۔ ان کے اس انداز پر سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب کو تراب خان سے یہی توقع تھی، سب جانتے تھے کہ بچی کا سنتے تراب خان کا ایسا ہی رد عمل ہوگا، مگر جزلان اپنی خوشی میں تراب خان کے اس رد عمل کو بھول گیا تھا شاید، اور اب بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ جزلان تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ سکھایا تھا میں نے تمہیں، لڑکی کے پیدا ہونے پر گاؤں بھر میں مٹھائیاں بانٹ کر تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچے بلند آواز میں چیخے تو جزلان کی گود میں موجود بچی کے رونے میں اور شدت آئی۔ اس نے فوراً سے پہلے بچی کو ایمل کو دیا اور پھر واپس ان کے سامنے آیا۔ آپ اپنی یہ دقیانوسی سوچ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا ہو یا بیٹی کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوتے تو دونوں ہی اپنے ماں باپ کے لیے اہم ہے نا، دونوں ہی اپنا خون ہوتے ہیں، پھر ہم کیسے اپنے ہی خون میں فرق کر سکتے ہیں؟ تو راب خان کے برعکس جزلان نے بہت دھیرے سے انہیں سمجھایا۔ سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے تو راب خان کی سوچ پر افسوس کر رہے تھے۔ تمہیں یاد نہیں جب تمہاری بہن پیدا ہوئی تھی تب خاندان والوں نے مجھے کتنی باتیں سنائی تھی، اور تم؟ اس سے آگے وہ کچھ کہتے جب بیچ میں ہی جزلان نے ان کی بات کاٹی۔ یہ خاندان والے، یہ ان کی باتیں ہی تو ہیں جن کے نقشے قدم پر چل کر آپ ان معصوموں سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے جیسا بن جاؤں، آپ کی طرح ساری زندگی کے لیے اپنی بیٹی کو خود سے دور کر دوں، اسے ہمیشہ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھوں۔ تو معاف کیجیے گا، مگر اب میں اتنا احمق نہیں رہا کہ اللہ کی دی رحمت سے منہ موڑ کر اپنے اللہ کو ہی ناراض کر دوں۔ میری بیٹی ہے یہ، جس کے دنیا میں آنے سے پہلے مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی تھی، اور اب جب وہ میری گود میں آ گئی ہے تو میری محبت کی کوئی حد ہی نہیں رہی۔ جزلان نے جتنا ہو سکے اتنا اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی تھی، ورنہ تراب خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا دماغ ایک بیٹا تو تھا ہی ایسا، اور اب دوسرا بھی۔ جزلان میں نے تمہیں یہ تو نہ سکھایا تھا؟ تو راب خان اسے دکھ اور غصے سے دیکھ کر بولے، جو آپ نے سکھایا تھا اس پر عمل کر کے کر تو رہا تھا اپنا نقصان، مگر شکر ہے وقت رہتے عقل آ گئی اور میں پوری طرح آپ جیسا بننے سے بچ گیا۔ جزلان کے لہجے میں ہلکی سی تلخی محسوس کر کے تراب نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ ان کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کرنے کے لیے جزلان نے ایمل کی گود سے سوتی بچی کو اٹھایا اور واپس تراب خان کے پاس آیا۔ بابا ایک بار دیکھیں تو اسے، دیکھیں یہ کتنی معصوم ہے، کتنی پیاری ہے، آپ کے بیٹے کی جان ہے یہ، ایک بار دیکھیں۔ کیا آپ کو اس ننھی سی جان کو دیکھ کر بھی اس پر پیار نہیں آ رہا؟ جزلان بہت ہی امید سے ان کے سامنے بچی کو کرتے بولا تو تراب خان غصے سے منہ ہی پھیر گئے، اس منحوس کو مجھ سے دور۔ بابا! ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جزلان صدمے اور غصے سے دھاڑا تو ایک بار پھر اس کی گود میں موجود بچی اونچی آواز نہ سہتے ہوئے رونے لگی، تو آگے بڑھ کر نور بیگم نے جلدی سے بچی کو جزلان کی گود سے لیا۔ سبھی فکر مند تھے، سب کو تراب خان کی سوچ پر افسوس تھا، مگر بولا کوئی کچھ نہیں تھا، کیونکہ آج ان کے لیے جزلان ہی کافی تھا۔ تم اس کے لیے میرے سامنے اونچی آواز کر رہے ہو؟ تراب خان غصے سے پاگل ہونے کو تھے۔ بابا آئندہ میری بیٹی کا ذکر کرتے وقت لفظوں کا چناؤ ٹھیک کیجیے گا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ سے میرا رشتہ کیا ہے۔ جزلان سرد لہجے میں سختی سے بولا، پہلے ایک بیٹا اور اس لڑکی کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اب تم بھی ایک لڑکی کے لیے اپنے ہی باپ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو۔ وہ ایک ناگوار نظر نوال پر ڈالتے بولے تو حسام اور رائد غصہ ضبط کر کے رہ گئے۔ بابا وہ آپ تھے جو آج تک اپنی بیٹی کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوئے، اسے پیار نہیں دیا، مگر میں آپ کے جیسا اب بالکل نہیں رہا۔ دنیا میں اگر میں سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ میری بیٹی ہے۔
और मैं हमेशा एक अच्छे बाप की तरह अपनी बेटी के साथ खड़ा रहूँगा। और अगर आपको मेरी बेटी के वजूद से इतनी ही नफ़रत है तो मैं अपनी बीवी और बच्ची को लेकर हमेशा के लिए आपकी हवेली छोड़कर चला जाऊँगा। मैं अपनी बेटी को कभी ऐसे घर में नहीं रखूँगा जहाँ एक वजूद उससे सख्त नफ़रत करता हो। जुज़लान ने बहुत ठहरे हुए लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया। जुज़लान को बेटी के हक़ में बोलते देख एमल की आंखें नम हुई थीं। उस वक्त उसे सब कुछ भूल गया था कि जुज़लान पहले क्या था, उसने क्या किया था। बस उसे याद था तो ये कि जो शख्स उसके सामने खड़ा उसकी बेटी के लिए अपने बाप से लड़ रहा है वो यकीनन एक बहुत अच्छा बाप साबित होने वाला है। जुज़लान, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम जानते नहीं हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अपने बेटों को मैं कैसे खुद से दूर कर सकता हूँ? तो राब खान उसके हवेली छोड़कर जाने वाली बात पर तड़प ही तो उठे थे। जैसे आप अपने बेटों से प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसने एक बार फिर समझाते वाले लहजे में कहा। शायद अब के उसकी बात उनके बाप को समझ आ जाए। मगर बेटा, वो लड़की, वो फिर से कुछ कहने लगे थे जब जुज़लान ने उनकी बात फिर काटी। बाबा प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं हवेली छोड़कर ना जाऊं तो आपको मेरी बेटी को खुशदिली से कबूल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं भी हवेली नहीं आऊँगा। जुज़लान ने दो टोक लहजे में रसान से कहा तो तुराब खान बगैर कोई बात का जवाब दिए एक खून झलकाती नज़र सब पर डालते कमरे से ही निकल गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी बेटी का साथ दिया। नूर बेगम आगे बढ़ते उसके कंधे पर हाथ रखते बोली तो जुज़लान ने नम आंखों से उन्हें देखा। मैंने आज बाबा से बहुत ही रूड लहजे में बात की, मगर मामा मैं क्या करता, उन्हें सही गलत समझाना मेरा फ़र्ज़ था। मैं नहीं चाहता कि नवाल की तरह कोई और लड़की इस फजूल सोच के ज़ेरे असर आकर तबाह हो। नम आंखें साफ करते नूर बेगम की गोद से उस नन्ही सी जान को लेते वो अपने साथ लगा गया। जुज़लान के सही फैसले पर वहाँ मौजूद हर शख्स खुश था। सबके चेहरे सुकून भरी मुस्कुराहट चमक रहे थे। थोड़ी देर बैठने के बाद सब लोग घर के लिए निकल गए। अब अस्पताल में एमल के पास सिर्फ जुज़लान था। सबको बाहर तक छोड़ने के बाद वो कमरे में आया तो उसकी दोनों जानें मज़े से सो रही थीं। वो बगैर आवाज़ पैदा किए आहिस्ता से एमल के बेड के साथ रखी कुर्सी पर बैठते, सहूलत से मुस्कुराती नज़रों से कभी एमल को देखता तो कभी अपनी नन्ही परी को। एमल जो आंखें बंद किए लेटी थी उसे बहुत ही अच्छे से खुद पर जुज़लान की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जिस पर उसने धीरे से आंखें खोलकर उसे देखा। तुम जाग क्यों गई? सो जाओ, मैं बैठा हूँ यहीं। उससे आंखें खोलते देखकर वो धीरे से बोला, तुम जानते हो जुज़लान, मुझे तुमसे बहुत नफरत थी, मगर एमल ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते उसके चेहरे के बेचैन तासुरात देखते अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मगर क्या? वो बेसब्री से बोला, तुमसे शादी के बाद मुझे तुमसे बहुत नफरत थी और जब शादी हुई तो सोचा समझौते की ज़िंदगी गुजार लूँगी, मगर जब तुम्हारी असलियत पूरी तरह मेरे सामने आई तो मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा का कफन में लिपटा चेहरा घूम गया। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो थोड़ी देर के लिए रुकी। एमल की बात सुनते जुज़लान को एक बार फिर शर्मिंदगी ने आन घेरा। मैंने सोचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, एमल धीरे से बोली, जबकि उसकी बात सुनते जुज़लान तड़प उठा। मगर मेरी किस्मत देखो, मैं जब भी तुमसे दूर जाने का सोचती हूँ कुदरत तुम्हें मेरे और करीब कर देती है। वो हल्के से हंसी तो उसकी बात पर जुज़लान उलझा। मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी, फिर देखो अल्लाह ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खो दे। बाप के जिंदा होते हुए भी वो यतीमों की तरह रहे। एमल ने एक पल के लिए भी जुज़लान के चेहरे से नजरें नहीं हटाई थी। जुज़लान बगैर कुछ कहे खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। आज वो बीच में बोलकर एमल को चुप नहीं करवाना चाहता था। वो चाहता था जो भी एमल के दिल में है वो सारा का सारा गुबार आज निकाल दे। जुज़लान, आज मैंने अपनी बेटी की खातिर तुम्हें मुआफ़ किया। आज एमल ने वो अल्फाज कह ही दिए थे जिन्हें जुज़लान कब से सुनने को तरस रहा था। क्या वाकई? वो हैरत और बेयकीनी से आंखें खोले उसे देख रहा था, जिस पर एमल ने धीरे से सर हाँ में हिलाया। हाँ, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। मैंने एक बुरे शख्स से नफरत की थी, मगर आज जो मेरे सामने बैठा है ना, वो एक अच्छा बाप है। अब तुम ही बताओ, इतने अच्छे शख्स से मैं नफरत कैसे कर सकती हूँ? जब तुम हमारे लिए खुद को बदल सकते हो तो क्या मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती? एमल धीरे से मुस्कुराकर बोली तो जुज़लान को गोया अपनी समातों पर यकीन ही नहीं आया। वो बेयकीनी से उठते एमल के माथे पर लब रख गया। एमल, तुम नहीं जानती तुमने मेरे दिल पर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। सच, आज मैं बहुत हल्का फुल्का फील कर रहा हूँ। शुक्रिया मुझे माफ़ करने के लिए, मुझसे नफरत ना करने के लिए। जुज़लान उसके गाल पर हाथ रखे जज्ब के
आलम में बोला, जुज़लान मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अपने दिल से तुम्हारे लिए नफ़रत भी ख़त्म कर दी, मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बस तुम मुझे थोड़े से अच्छे लगने लगे हो। एमल धीरे से मुस्कुराकर बोली तो वो भी दिलकशी से मुस्कुरा दिया, फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दूंगा, लेकिन अभी तो मेरे लिए यही बहुत है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। वो एक बार फिर उसके माथे पर लब रखते बोला तो एमल ने पुरसकून होते मुस्कुराकर आंखें बंद की। अभी एमल ने आंखें बंद ही की थीं जब उनके छोटे पैकेट ने रोना शुरू कर दिया, जिस पर वो उससे दूर होते छोटी परी को गोद में उठाकर उसे चूम गया। वो लोग मुकम्मल हो गए थे, ज़िंदगी में सुकून लौट आया था, मगर ये सुकून ज़्यादा देर नहीं रहा जब जुज़लान का फ़ोन बजा। वो बच्ची को एमल को थमाते जेब से फ़ोन निकालता राइद की कॉल आती देख जल्दी से रिसीव कर गया। हाँ बोलो राइद, जुज़लान बाबा को फालिज का अटैक हुआ है, हम उन्हें हस्पताल ही लेकर आ रहे हैं, तुम वहीं पर रहना। क्या? मगर कैसे हुआ? उसके उजलत पर बताने पर जुज़लान ने परेशानी से माथा मसलते पूछा तो उसके परेशान चेहरे को देखते एमल को भी फिक्रमंदी लाहक हुई। पता नहीं, गाँव ही जा रहे थे कि रास्ते में तबीयत खराब हो गई। ड्राइवर उन्हें करीब अस्पताल ले गया था, जहाँ से पता चला कि उन्हें फालिज का अटैक हुआ है। खैर तुम परेशान ना हो, हम पहुँच रहे हैं बस अस्पताल, राइद ने जल्दी से कहते फ़ोन काटा। क्या हुआ जुज़लान, सब ठीक तो है? एमल ने फिक्रमंदी से पूछा। बाबा को फालिज का अटैक हुआ है यार, राइद उन्हें हॉस्पिटल ला रहा है, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, तुम परेशान ना हो ना, मैं तुम्हारे पास नर्स को भेज देता हूँ। जुज़लान के कहने पर एमल धीरे से हाँ में सर हिला गई तो वो कमरे के बाहर निकल गया। वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, फिर अचानक यूँ अटैक का आना डॉक्टर की समझ से बाहर है, मगर डॉक्टर कह चुके हैं कि उन्हें बहुत बुरा अटैक हुआ है और अब वो पूरी तरह से बिस्तर से लग चुके हैं। ठीक होंगे या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। नूर बेगम तो ये सुनते ही रोए जा रही थी, सब लोग ही परेशान थे, सबको यही लगा था कि ये तुराब खान के आमाल का नतीजा है। उन्होंने जितना सबका दिल दुखाया था ना, अल्लाह ने दुनिया में ही उन्हें उनके अमाल की सज़ा दे दी। 4 साल बाद वक्त का काम है चलते रहना, और वो चलता ही जा रहा था, ना वो किसी के लिए रुकता है और ना रुका था, सब गुजरता जाता है और अपने साथ दुख सुख सब लाता है। आज से 3 साल कबल सख्त अदालत के बाइस तुराब खान इंतकाल कर चुके थे। वो अपने आखिरी वक्तों में भी नहीं बदले थे, ना ही उन्होंने कोई नसीहत हासिल की थी, वो हर एक के मोहताज हो गए, मगर फिर भी उनकी अकड़ नहीं गई थी। उनकी बीमारी की वजह से जुज़लान अपनी सारी नाराज़गी भुलाए हवेली आ गया था, जिस पर वो बहुत खुश थे, मगर वो नवाल से वैसे ही नफरत करते थे। जुज़लान की बेटी की तरफ कभी उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा था, मगर राइद के यहाँ बेटा पैदा होने पर वो बहुत खुश हुए थे। राइद अपने बेटे को उनके पास ज़्यादा लेकर ही नहीं जाता था, वो खुद भी बहुत कम उनके पास जाता था, तो राब खान उसकी सूरत देखने के लिए तड़पते रहते, मगर उन्हें बीमार देखकर भी जैसे राइद के दिल में कोई जज्बा पैदा नहीं होता था हमदर्दी का। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने सिर्फ राइद से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मगर ज़िंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत भी ना दी। गरूर, तकब्बुर, अना, सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो गया। आंखें बंद हुई और इंसान अब्दी नींद जा सोया। राइद ने उनकी मैयत को कंधा दिया और जब उनकी मैयत को कब्र में उतारा गया उस वक्त ही उसने उन्हें माफ़ कर दिया था। बाप चाहे जितना ही बुरा क्यों ना हो, मगर होता तो बाप ही है, औलाद को बाप से प्यार तो होता है। जिस तरह राइद ने तुराब खान की सारी गलतियों को माफ़ कर दिया था, वैसे ही नवाल ने भी अपने दिल में रखने की बजाय उन्हें माफ़ कर दिया था। उन्होंने नवाल का बहुत दिल दुखाया था, हर तरह से उसे ज़हनी अजियत पहुंचाई थी, मगर नवाल ने हमेशा दिल बड़ा करके उन्हें माफ़ कर दिया था। कहते हैं कि जाने वालों की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छे लफ्ज़ों में उन्हें याद करना चाहिए, मगर उन लोगों के पास तुराब खान को याद करने के लिए कोई अच्छी याद थी ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी उनका जिक्र होता, कभी भी कोई उनके पिछले अमाल का जिक्र नहीं करता था, बल्कि सब उनके लिए दुआ ही करते थे कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए।